Hello and welcome students. So from today we'll be starting a new set of videos wherein we will be solving and practicing a whole lot of questions especially for NEET aspirants, right? So this series of videos will be named as NEETathon 2020. So in this video we'll be solving about 45 questions, right? So this video is for those students who will be giving NEET exam this year, and because even you think you know everything and you just have your concepts all brushed up and you are all ready, all set, but practice makes a man perfect. So practicing is very important. So let's go. So set your timer now. In first question, in the ABO system, blood group O is characterized by the presence of antigen O. सो एबीओ सिस्टम में आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ दैट मीन्स कि आपके पास उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है. यू नो वेरी वेल. ए ब्लड ग्रुप हैज ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप हैज बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन. सो अब रीड करो. फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओ, no, there is no as such antigen O. Presence of both antigen A and B, absolutely not. ये किसका केस हो जाता है? किसका केस हो जाता है ये? A B. तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया आपका ऐसा गलत हो गया. प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन नो, एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन A and B. Yes, this is right. एंड फोर्थ भी पढ़ लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ एंटीजन A and absence of B, no, that will be your A blood group. So C will be your answer. Right? So going to the next question, answer is C. So correct. Now coming to the next question, which is a Helminth disease? First, polio. So you know polio is caused by a virus. It is a viral disease. It is caused by a polio virus. So first one wrong, right? Now second, filariasis. Yes, it is an Helminth. कहाँ से? कौन सा वाला हेलमिंथ? एस्केलमिंथस, राउंड वॉर्म्स. यू नो वेरी वेल. सो फिलेरियासिस इज करेक्ट. Filaria is the name of that worm, filarial worm. So it's not a disease. Now diphtheria is a bacterial disease caused by Corynebacterium diphtheria, right? So the answer is filariasis, right? So let's check. Yes, answer is B. Next question number 3. Test tube baby means a baby born. So what is actually test tube baby? आपने पढ़ा होगा IVF में, in vitro fertilization में. So let's go into the options. A, developed in a test tube. Yes, but not completely developed, right? So let's go for the next options. B, ovum is fertilized externally and thereafter implanted in uterus. मतलब ovum एक्सटर्नल बाहर फर्टिलाइज होता है बट इम्प्लांटेशन बाद में यूट्रस में, मदर के यूट्रस में हो जाता है. यस, दिस इज करेक्ट. थर्ड, इट इज. सो मतलब क्या हो गया आपका कि दिस इज नहीं, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दिस इज करेक्ट. Third, it is developed through the uterus through the tissue culture method. No. Developed from a non-fertilized egg. No, it is not possible. तो ये गलत. तो सही क्या है? B. Next, fourth, the disease characterized by extreme muscular weakness and brownish pigmentation of the buccal cavity and skin. सो इसके लिए सबसे पहले देखो ग्रेव्स डिजीज. ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज यू नो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर. सो दिस इज अ थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइड, ठीक है ना? तो ये थायरॉइड ग्लैंड का है और ये हाइपरथायरॉइडिज्म है जिसके ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते हैं. नेक्स्ट आओ मिक्सडीमा. मिक्सडीमा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म. और इडीमा मीन्स स्किन प्रॉब्लम. सो यहाँ पर क्या होता है? स्वॉलन स्किन हो जाती है आपकी, स्वॉलन एंड पफी स्किन हो जाती है. तो ये भी नहीं, ये भी नहीं. एडिसन इज अ काइंड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है जहाँ पे कॉर्टिसोल इनसफिशिएंट बनता है और जिसकी वजह से मस्कुलर पेन जॉइंट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और ये सब कुछ होता है, ठीक है ना? तो दिस इज द राइट आंसर. कशिंग्स डिजीज इज काइंड ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है और वेट गेन और फैटी डिपोजिशन होता है. सो इसीलिए this is also wrong. So what is the correct answer? Addison's disease, right? So let's go to the next question.
Probable cause of erythroblastosis fetalis. Now, एरिथ्रोब्लास्टोसिस सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है. आई गेस यू नो इन RH नेगेटिव मदर में जब अगर बेबी RH पॉजिटिव आ जाता है तो उसका ब्लड टाइप इनकम्पैटिबल हो जाता है ना. तो इसीलिए मदर के WBCs अटैक करने लगते हैं अपने खुद के बेबी को और उनके RBCs को, बिकॉज उन्हें लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको मारना ज़रूरी है वरना ये हमारी बॉडी को हार्म दे सकता है. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. तो ये क्यों होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस? ब्लीडिंग? नो, not at all. Hemophilia? No. Joining of RBCs? Yes. Diapetesis? No. Diapetesis means कि आपका movement of the leukocytes हो जाता है from the cell spaces to cause inflammation. तो ये भी नहीं है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? C. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The changes from over vegetative to reproductive phase in many plants takes place in response to. तो जो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज का जो ट्रांसिशन है प्लांट्स में वो किसके रिस्पॉन्स में होता है? फर्स्ट, ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर? नो. सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर? नो. लेंथ ऑफ द डे? यस. सो लेंथ ऑफ द डे, ये आपको पता है, आपने पढ़ा भी था लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट्स और ये सब आपने बहुत अच्छे से डे लेंथ की सनलाइट कितने देर तक आ रही है प्लांट के पास, उससे सारा का सारा आपका डिपेंड करेगा उसकी ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट. सो फोर्थ भी पढ़ लेते हैं. मेनली द फूड मटेरियल अवेलेबल इन द सॉइल? नो. सो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द डे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. The pigment involved in red far red light interconversion. Lycopene. Lycopene क्या होता है? It is a kind of carotenoid. ठीक है, तो lycopene नहीं है. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है आपका? फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम यस. सो मतलब फाइटोक्रोम करेक्ट है, लाइकोपेन नहीं है. साइटोक्रोम क्या होता है? आपको पता है, इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट्स, है ना. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. Then like xanthophyll. Xanthophyll is a kind of yellow colored pigment जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है. तो कौन सा कंपोनेंट है आपका? फाइटोक्रोम इज द करेक्ट आंसर, बी. चलो नेक्स्ट. आर्के बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन हैविंग. आर्के बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है यू बैक्टीरिया से? किस तरह से डिफरेंट है? इन सेल शेप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? नहीं. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो किस में डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में. वाई? बिकॉज आपको पता है कि जो आर्के बैक्टीरिया है उनमें क्या नहीं होता है? नो पेप्टाइडो ग्लाइकन. नो पेप्टाइडो ग्लाइकन तो नहीं होता है. तो मतलब कि आपको समझ आ गया है कि मतलब आर्किया और यू बैक्टीरिया में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट. RBC काउंट इज लो इन अनीमिया एंड. RBC काउंट किस में लो होता है? अनीमिया तो है ही, और किस में होता है? तो आपको बताना है. सबसे पहले फर्स्ट, मिक्सडीमा? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है मिक्सडीमा का. इन्फ्लुएंजा? बिल्कुल नहीं. टाइफाइड? नहीं. तो किस में होता है फिर? ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया का वर्ड ही आप ना अगर तोड़ कर देखते हो, ल्यूकीमिया का मतलब ही क्या है? ल्यूकोसाइट्स, राइट. ल्यूकोसाइट्स अनीमिया. तो मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ आरबीसीज. तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज योर डी, ल्यूकीमिया. ठीक है. चलो नेक्स्ट. A child is suffering from kwashiorkor, and if this child is compared with other marasmus children, then what additional symptoms are present in kwashiorkor child? मतलब अगर आपका चाइल्ड kwashiorkor से सफ़र कर रहा है और दूसरा चाइल्ड marasmus से कर रहा है, तो kwashiorkor का क्या एडिशनल सिम्टम प्रेजेंट होगा जो कि एक marasmus के चाइल्ड में प्रेजेंट नहीं होगा? तो सबसे पहले वेस्टेड मसल्स? नहीं. डिक्रीज इन बॉडी वेट? बिल्कुल. इम्पेयर्ड फिजिकल ग्रोथ? नहीं. इडीमा? नहीं. तो आंसर इज बी, डिक्रीज इन बॉडी वेट. सो दिस इज एन एडिशनल सिम्टम जो कि किस में प्रेजेंट होता है? क्वाशियोरकर सफरिंग चाइल्ड में. ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा भी है. नेक्स्ट. ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स इन फंजाई बिकॉज, बट इन फंजाई बिकॉज. तो ईस्ट को प्रोटोजोआ में नहीं रखा गया, फंजाई में रखा गया. ऐसा क्यों? फर्स्ट,
इट हैज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल एज स्टार्च, फिर तो इसको प्लांट में होना चाहिए था, तो ये भी नहीं। सी सम फंगल hyphae grow in such a way that they give the appearance of pseudomycelium। फंगस का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है क्या, कि उसके अंदर हाइफे माइसीलियम ग्रो करते हैं, तो दैट्स वाई ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका, जो कि उसको फंगस में ज़्यादा सिमिलर बनाता है और उसको हम फंजाई या फंगस में रखते हैं। ठीक है, तो सी विल बी योर आंसर। इट हैज़ नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हैज़ नथिंग टू डू विद द फंजाई पार्ट, सो मतलब क्या आंसर हो गया? सी। चलो नेक्स्ट, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हाँ बिल्कुल। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, जी हाँ। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, बिल्कुल। तो मतलब आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे दे आर ऑल द प्रॉपर्टीज और दे आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इन 13 इन पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, सो साइटोस्टोम मीन्स माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ, तो माउथ का फंक्शन कभी भी क्या ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है? नहीं। नेक्स्ट हाउस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन होता है दैट मीन्स इज ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट साइटोपाइज, पाइज मीन्स एनल, या जहाँ से आप वेस्ट निकालते हो, तो मतलब ये भी कभी नहीं हो सकता है ऑस्मो रेगुलेशन। ट्राइकोसिस्ट इज बेसिकली माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सीलिएट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी नहीं। तो आंसर इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपको पता चल गया हो कि आंसर क्या है, फिर भी आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि देखकर और छोड़ दोगे अरे ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कई बार मोर देन वन आंसर आर करेक्ट एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा मार्क करो, तो आपको मोर करेक्ट वन मार्क करना है। चलो 14th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 14, अभी हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ बट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स गो जल्दी। सुरेश एंड कोयल आर प्लानिंग अ फैमिली बट सिंस ईच हैज़ अ ब्रदर हैविंग द सिकल सेल डिसऑर्डर, मतलब उनको फैमिली प्लान करनी है और उनके दोनों के भाई जो हैं सुरेश एंड कोयल के, उनको सिकल सेल डिसऑर्डर है। सो वो वरीड हैं कि उनके किड्स में ये डिसऑर्डर ना आ जाए। सो नीदर राजू रानी की जगह सुरेश एंड कोयल है। ठीक है, तो मिस्टेक है यहाँ पे। सो नीदर सुरेश एंड कोयल नॉर द रिस्पेक्टिव पेरेंट्स हैव द डिसऑर्डर, तो ना ही सुरेश एंड कोयल में है ये डिसऑर्डर और ना ही उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स में है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी क्योंकि उन दोनों के भाइयों को है तो वो जेनेटिक काउंसलर से डिसाइड करा है उन्होंने कंसल्ट करना, तो क्या वो रेकमेंड करेगा या क्या वो बोलेगा कंसल्ट करने के बाद। तो देखो सबसे पहले, इट्स पॉसिबल दैट नन ऑफ देयर किड्स विल हैव द डिसऑर्डर बट ब्लड टेस्ट ऑन बोथ ऑफ देम शुड बी कैरीड आउट टू कंफर्म। सो देखो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ समझो कि उनके भाइयों को है, ठीक है ना, तो अगर मैं सुरेश एंड कोयल या उनके रिस्पेक्टिव भाइयों को लेकर चलूँ तो उनके पेरेंट्स सेम है, लाइक सुरेश एंड हिज ब्रदर हैव कॉमन पेरेंट्स एंड कोयल एंड हर ब्रदर आर कॉमन, ठीक है ना, सॉरी कोयल एंड हर ब्रदर हैव कॉमन पेरेंट्स, राइट। तो दोनों के अगर मैं लेकर चलूँ कोई भी एक केस, तो अगर उनके भाइयों में है सिकल सेल, तो सिकल सेल कैसे होगा? जब HbS और HbS आएगा, सिंपल सी चीज़ है ना। तो जब HbS और HbS आएगा तभी ये पॉसिबल है कि उसको सिकल सेल हो। तो अगर ये ब्रदर में है तो इसका मतलब इनके पेरेंट्स जो हैं सुरेश एंड कोयल के, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे? उनको डिसऑर्डर तो नहीं, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब जो इनके पेरेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? दे मस्ट बी द कैरियर्स, तभी तो ये केस आया है ना। सो HbA HbS इनके पेरेंट्स होंगे, लेकिन आपने देखा कि इनका एक भाई, मतलब एक इनकी जो प्रोजनी है वो आपकी अफेक्टेड है, बट जो दूसरी प्रोजनी है विच इज़ कोयल या सुरेश के पेरेंट्स से ले लो या कोयल के पेरेंट्स से ले लो, तो वो मतलब उनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो मतलब या तो ये भी कैरियर हो सकते हैं या फिर ये नॉर्मल हो सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? आप एक ग्राफ बना लो, मतलब टेबल बना लो सिंपल सा। कैसे? मान लो कि सुरेश एंड हिज ब्रदर के पेरेंट्स के कैरियर्स थे, HbA और HbS थे, ठीक है ना। तो अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो मान लो HbA इधर HbS इधर,
HBA इधर, HBS इधर, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HBA, यहाँ पे आ जाएगा SA या AS, यहाँ पे क्या आएगा HBAS, यहाँ पे क्या आ जाएगा HBSS। तो मतलब अफेक्टेड भी आ सकता है, कैरियर्स भी आ सकते हैं और नॉर्मल भी आ सकता है। तो मतलब हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सुरेश एंड कोयल क्या है हमें नहीं पता, वो नॉर्मल चाइल्ड हैं या वो कैरियर्स हैं, बिकॉज ये तो पक्का नहीं है, ये तो वी आर कन्फर्म्ड, ये तो उनके भाई हैं अफेक्टेड, बट इनमें से वो कुछ भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी और सिकल सेल भी, तो ये वी डोंट नो। तो इसीलिए क्या उन्हें सलाह देगा जेनेटिक काउंसलर, फर्स्ट इज इट इज पॉसिबल दैट नन ऑफ देयर किड्स विल हैव द डिसऑर्डर बट ब्लड टेस्ट ऑन बोथ ऑफ देम शुड बी कैरिड आउट टू कंफर्म, यस द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। B. All of their children will have sickle cell disorder. No, that's not possible. Third, 1 of 4 children can be expected to have sickle cell. ये तब possible है जब हम confirmed हैं कि वो दोनों carriers हैं, but we are not confirmed. ठीक है, तो ये भी नहीं. Next, there is no chance of any of their kids having sickle cell. नहीं, ये भी तब possible है जब हम कहें कि हाँ we are sure कि they are not carriers, they are perfectly fine. तो सबसे accurate क्या है? A. ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा टाइम इसलिए भी लग रहा है बिकॉज मुझे सॉल्व भी करना है हमें और आपको समझाना भी है साथ साथ। चलो नेक्स्ट 15th, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स इज इनएक्टिवेटेड बाय, चलो ए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बिल्कुल नहीं। enzymes coded by mitochondrial DNA, बिल्कुल नहीं। number of dominant genes found on X chromosome, बिल्कुल नहीं। epigenetic markers, yes, epigenetic markers क्या है, फॉर एग्जाम्पल DNA मॉडिफिकेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली जेनेटिक कोड से रिलेटेड या कंट्रोल नहीं होते हैं, दे आर जेनेटिक एपिजेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, Which of these illustrates pleiotropy? What is pleiotropy? सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है। एक जीन जब इन्फ्लुएंस करे, वन जीन इज इन्फ्लुएंसिंग मैनी phenotypic कैरेक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे चलो देखो, ए मेटिंग बिटवीन ईयरलेस शीप एंड लॉन्ग ईयर्ड शीप ऑलवेज रिजल्ट इन शॉर्ट ईयर्ड ऑफस्प्रिंग, ये नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं बता रहा है ना, तो दिस इज रॉन्ग। B. Human cystic fibrosis causes many symptoms from respiratory distress to digestive. Yes, जो आपका CFTR जीन होता है which is cystic fibrosis transmembrane conductance regulator जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर cystic fibrosis, ये आपका बहुत सारे अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स को एक जीन कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सो यस, दिस इज करेक्ट। फिर भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वॉट वीट कर्नल्स कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू रेड इन कर्नल, नहीं, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। द जीन्स फॉर स्कारलेट आइज एंड हेरी बॉडीज एंड फ्रूट फ्लाइज आर लोकेटेड ऑन द सेम, नहीं, ये भी नहीं है बिल्कुल। ऑन द सेम क्रोमोसोम, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आंसर इज योर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पस्यूल इन डाइनोफ्लैजिलेट्स, पस्यूल का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रैक्टाइल थिंग, ठीक है ना, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। दैट्स वाई डाइनोफ्लैजिलेट में ऑस्मो रेगुलेशन नहीं, फूड प्रोडक्शन नहीं, फूड स्टोरेज नहीं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है, उसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज ऑफ कार्बन फिक्सेशन हैज PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 में क्या था, C3 में क्या होता है, RUBP, याद है ना, और C4 में होता है PEP, तो आंसर विल बी और C4 प्लांट्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियोलस इज फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यस, NORs जिसे हम बोलते हैं नॉर्स, तो यस, ठीक है। ओनली वन न्यूक्लियाई इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, नो, there are more than nucleolar organizing regions in a nucleus and thus more nuclei, ठीक है। Transcription of RDNA occurs in fibrillar center, ठीक है। Nucleolus contains a high concentration of iron in various plant species, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा वाला गलत हुआ, B, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, Which of the following are synthesized in the nucleolus, क्या बनता है इनमें से न्यूक्लियोलस में, ये तो आंख बंद करके बता सकते हो, tRNA, rRNA, DNA, all of the above,
राइबोसोमल आरएनए, पता है, राइट। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द लैक ओपरॉन इन ई कोलाई फ्रॉम द फॉलोइंग इज, लैक ओपरॉन इज स्विच्ड ऑन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्या ये सही है? पक्का नहीं। चलो नेक्स्ट, लैक रिप्रेसर बाइंड्स टू द लैक प्रोमोटर, नहीं, इट बाइंड्स टू ऑपरेटर, है ना, तो ये भी गलत। थर्ड, बीटा गैलेक्टोसाइडस इज द ओनली एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन लैक ओपरॉन इज टर्न्ड ऑन, बिल्कुल नहीं, देयर आर 3 एंजाइम्स नेम्ड ZYA। क्या क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमिएस एंड ट्रांसएसिटाइलेस, तो ये भी नहीं। डी, लैक ओपरॉन मैसेंजर या mRNA इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, बिल्कुल सही, बिकॉज पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स ऐसा mRNA जो कि एनकोड हो रहा है बाय अ सिंगल प्रमोटर एंड सिंगल टर्मिनेटर रीजन। तो आप देख रहे हो 3 जीन्स कॉमन प्रमोटर और कॉमन टर्मिनेटर से ट्रांसक्राइब हो रही हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, तो इसीलिए दिस इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपरॉन, अभी ऊपर डिस्कस किया, क्या होता है? लैक जेड, लैक वाई, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तो कौन सा हो सकता है? ZYA, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लास रेप्टीलिया, बताओ जल्दी से। रेप्टीलिया नाम से ही पता चल जाता है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, यस, एपिडर्मल स्केल्स, बिल्कुल, एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, फर्स्ट ही सही हो गया, ये तो बढ़िया बात हो गई। नेक्स्ट, मरीन हैबिटेट, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंड हैव प्लेकॉइड स्केल, ये किसका फंक्शन है? कॉन्ड्रिक थाइस के फीचर्स हैं ये। फ्रेश वाटर हैबिटेट, बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर, ऑस्टिक थाइस, फाइसिस, moist skin and body is devoid of scales, ear is represented by tympanum, amphibians, तो कौन सा रेप्टाइल का हुआ? ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर विदाउट एनी एक्सेप्शंस, कॉन्ड्रिक थाइस, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यस, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कॉन्ड्रिक थाइस मीन्स कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, तो ये ही है, फर्स्ट सही है, फिर भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। रेप्टीलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ अनडिवाइडेड वेंट्रिकल, यस, बट एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। मेमेलिया विविपेरस, यस, बट एक्सेप्शन इज प्लैटिपस, यू नो प्लैटिपस इज एन ओविपेरस, है ना। और नेक्स्ट फिर क्या है? कॉर्डेटा, आपको एग्नेथा के बारे में पता है, एग्नेथा क्या होते हैं? विदाउट जॉज वाले, तो यहाँ पे हैव माउथ विद लोअर एंड अपर जॉ, नहीं, एग्नेथा भी हैं कॉर्डेट्स, तो इन सब का एक्सेप्शन है एक्सेप्ट फॉर द ए पार्ट, तो ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मास सेल्स कंटेन, फर्स्ट हेपेरिन, हिस्टामिन, बिल्कुल सही, हेपेरिन एंड कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन होता है क्या? कैल्सिटोनिन कहाँ होता है? थायराइड में रिलीज होता है बाय थायराइड ग्लैंड। फिर आ जाओ सेरेट, तो ये नहीं, सेरोटोनिन एंड मेलेनिन, सेरोटोनिन तो ठीक है, बट मेलेनिन इज रिलीज फ्रॉम मेलानोसाइट्स पिगमेंट सेल्स, तो ये भी नहीं। वेसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन, बिल्कुल नहीं, वेसोप्रेसिन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से, और रिलैक्सिन इज अ प्लेसेंटल हार्मोन, तो ये भी नहीं, तो इसीलिए हेपेरिन एंड हिस्टामिन, ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, ligament is a modified yellow elastic fibrous tissue, B inelastic white fibrous tissue, C modified white fibrous tissue, none of the above। भाई नाम से आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लिगामेंट इज अ मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वाइट होता है बट नहीं, येलो होता है, ठीक है, तो ए पार्ट। चलो नेक्स्ट, Colchicine arrest cell division at which stage? Interphase, prophase, metaphase, anaphase, किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफेज में, याद रखोगे, ठीक है। तो कॉल्चिसिन जो है वो सेल डिवीजन को अरेस्ट करता है, इनहिबिट करता है एट मेटाफेज स्टेज। चलो नेक्स्ट, अर्ली प्रोफेज ऑफ अ डिप्लॉयड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टीलोफेज ऑफ अ डिप्लॉयड सेल हैज डैश सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। चलो अब इसका क्या होगा? देखो तुम्हें अच्छे से पता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज में, तो जितने क्रोमोसोम हैं, अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो जब टीलोफेज में जाएगा तो भी 2 सेट्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये टेट्राड फॉर्मेशन करता है, तो मतलब पहले क्रोमोसोम अलग होते हैं, बट इसमें फिर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। सो इसीलिए अगर 2 पेयर्स यहाँ पर हैं तो आफ्टर टीलोफेज भी 2 ही रहने वाले हैं, याद है ना अच्छे से, तो इसीलिए आंसर विल बी योर व्हाट? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट लिंक सिस्टर क्रोमैटिड्स, कौन सा होता है? एक्टिन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, लिंकिंग का तो एक्टिन का काम है ही नहीं। एक्टिन मायोसिन और कॉन्ट्रेक्टाइल लोकोमोशन का काम है। सिमिलरली एक्टिन मायोसिन का कॉम्प्लेक्स एक्टोमायोसिन भी नहीं है, तो बचा क्या? कोहेसिन। नाम से पता चल रहा है कोहेसिन एडहेसिन, दे आर यूजुअली फॉर लिंकिंग, ठीक है ना, तो कोहेसिन हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलेंट्रेट्स एंड स्पॉन्जेस आर, चलो बताओ जल्दी जल्दी। सीलेंट्रेट्स क्या होता है? निडेरिया। स्पॉन्जेस एसिलोमेट्स होते हैं, कंफर्म एसिलोमेट्स। तो ये 3 ऑप्शन है एसिलोमेट्स के। अब इनमें से देखो, सीलेंट्रेट्स क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? बिल्कुल नहीं। मोनोब्लास्टिक होता है? ऐसा कुछ होता है क्या मोनोब्लास्टिक? नहीं। तो फिर क्या बचा? डिप्लोब्लास्टिक, है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक इज सीलेंट्रेट्स एंड स्पॉन्जेस आर एसिलोमेट। तो ये सब गलत, ओनली कौन सा सही है? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेयर डज ट्रू सीलोम प्रेजेंट इन द बॉडी, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम डायग्राम बनाते वक्त भी देखते हो आप लोग, क्या कि सीलोम जो होती है, ट्रू सीलोम, वो हमेशा मीजोडर्म से अटैच्ड होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिटवीन मीजोडर्म एंड बॉडी वॉल या एंडोडर्म? यस। बिटवीन बॉडी वॉल एंड एक्टोडर्म? बिल्कुल नहीं। मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म? बिल्कुल नहीं। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म? बिल्कुल नहीं। तो ये याद रखोगे, मीजोडर्म से अटैच होनी चाहिए ट्रू सीलोम, ठीक है। सो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलो, द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए विद रिगार्ड्स टू प्रोटीन सिंथेसिस इज, टीआरएनए याद करो कहाँ? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ट्रांसलेशन, याद आया? तो प्रूफ रीडिंग? बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाइज अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू राइबोसोम्स, पक्का? हाँ। इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, अरे भाई बिल्कुल नहीं। ट्रांसलेशन तो वो प्रमोट कर रहा है। ऑल ऑफ द अबव, अरे नहीं यार। तो क्या बचा? अब बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, क्या कि जब भी हमको अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी रिमूव देयर anther part. So removal of anthers is also known as emasculation. Then we bag so that no other unwanted pollen gets stick to its stigma. So bagging is done. Then we do dusting of pollens of required species, cross pollination, and then we again rebag. क्यों? ताकि फर्दर जब तक वो डेवलप हो रहा है, अंदर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो सक्सेसफुली जब तक फर्टिलाइज ना कर जाए, जब तक वो सक्सेसफुली ना हो जाए प्रोसेस, तब तक वी डू रीबैगिंग सो दैट कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर उसे अफेक्ट ना करे। सो सी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट, द सीड डोरमेंसी, तो क्या बताना है? इनकरेक्ट। Seed dormancy is the internal or innate inhibition of generation of normal or viable seeds. बिल्कुल करेक्ट है ये तो। नेक्स्ट, embryo in the dormant seed show higher rate of general metabolic rate. बिल्कुल नहीं यार, इसका मतलब ही होता है डोरमेंसी का कि आपका रिड्यूस हो गया है मेटाबॉलिज्म, सो रिड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो यही गलत हो गया। बिकॉज ऑफ डोरमेंसी सीड्स रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड कैन बी स्टोर्ड। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। एज द सीड्स मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड, सीड्स बिकम्स रिलेटिवली ड्राई, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत हुई स्टेटमेंट? बी, ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन लीड टू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, क्या? इंक्रीज रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेंस, मतलब क्या हम और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं यार, यही पहले ही हो गया गलत। चलो नेक्स्ट पढ़ो, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, हाँ ये तो होगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन वाटर यूज, बिल्कुल हो सकता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, बिल्कुल हो सकता है। सो बी, सी एंड डी ऑल आर पॉसिबल, बट द दिस वन, कौन सा वाला? ए वाला पार्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट, रेयरली फीमेल्स एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया एज दे डू सो ओनली व्हेन दे आर, तो फीमेल्स एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट कब? कैरियर में। दे आर ऑल फाइन, जब तक वो कैरियर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनको फर्क कब पड़ेगा? फर्क उन्हें तब पड़ेगा जब दे आर होमोजाइगस फॉर द डिफेक्ट, ठीक है ना, व्हेन दे आर इन XH कंडीशन। दिस इज लीथल, दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है ना, तो इसीलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट, ग्लायोक्सिसोम्स आर प्रेजेंट इन रूट हेयर्स, पहले से
रूट है इसमें? नहीं। पहली बात तो ग्लाइक्सोसोम्स हैं क्या? पेरोक्सिसोम्स है, ठीक है ना, काइंड ऑफ पेरोक्सिसोम्स है। तो पैलिसेड सेल्स ऑफ लीफ बिल्कुल नहीं। एंडोस्पर्म में होता है। अब वीट में या कैस्टर में? कैस्टर में, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है या कह लो यू हैव टू रिमेंबर। सो वीट में नहीं होता है, किसके एंडोस्पर्म में होता है? कैस्टर के। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे याद आया कुछ? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनते थे, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट बनते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद फिर आपके बनता था स्पर्मेटिड्स जो कि अटैच्ड होते थे किससे? सर्टोली सेल से, और फिर आपका बनता था स्पर्मेटोजोआ विच वॉज इंडिविजुअल स्पर्म्स जिसे आप बोल देते हो। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। तो क्या? डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if endosperm cell of a dicot plant contains 30 chromosomes, find the number of chromosomes present in the root cells of the plant. So endosperm dicot plant का मतलब कितना होता है? ट्रिप्लॉइड, 30 क्रोमोसोम है, तो n कितना? 10। और रूट सेल्स कैसा होते हैं? डिप्लॉइड, तो कितने हो गए? 20। सो योर आंसर इज सी, 20। समझ आया ना सबको? चलो नेक्स्ट, fight or flight reaction causes the activation of first, fight or flight याद करो सबसे पहले क्या आता है? so the parathyroid glands leading to increased metabolic rate, नहीं, कोई लेना देना नहीं। adrenal medulla leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine, yes, ये याद आए, epinephrine and norepinephrine, flight and fright है ना, यही तो हॉर्मोन्स हैं। so this is the correct one, but फिर भी pancreas leading to a reduction in blood sugar levels, नहीं। फिर द किडनी कॉजिंग सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, रास वाला जो है ये, नहीं यार बिल्कुल भी नहीं है ये तो क्या हुआ? आंसर इज बी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड इन मोनोकॉट्स एज, क्यों होते हैं? प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, नहीं यार। प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल नहीं। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर इज सी, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम ही नहीं है, इसलिए वैस्कुलर बंडल्स आपके क्लोज्ड हैं मोनोकॉट्स में। जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन सेपरेट बंडल, नहीं यार, ये भी रीजन नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 42 इज डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड इज दैट हार्टवुड क्या है? शोज द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स एंड रेज, नहीं यार। हैज डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, नहीं। लैक्स पैरेन्काइमा एंड वेसल्स, ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ते हैं। शोज द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स एंड रेज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैज डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, यस, हार्टवुड हैज डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। लैक्स पैरेन्काइमा एंड वेसल्स, नहीं। ससेप्टेबल टू पैथोजेंस एंड पेस्ट, नहीं। तो आंसर इज योर बी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, main function of the cornea present in human eye is render structural support to the eye, नहीं। तो bends light before it reaches the lens, yes, ठीक है। तो बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो लेंस में पहुंचने से पहले कॉर्निया क्या कर देता है? रिफ्रैक्ट कर देता है या बेंड कर देता है बिफोर रीचिंग द लेंस, ठीक है ना। चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, नहीं, वो किसका काम है लेंस का शेप चेंज करना? सीलियरी मसल्स का, है ना। कंटेन्स अ कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ कोन सेल्स, नहीं। ऑन द करेक्ट ओरिएंटेशन, नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे गलत दिया है इसका आंसर ए, तो आपका आंसर ए नहीं हो सकता है और आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट, द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन रेटिना आर परकिंजे सेल्स। परकिंजे सेल्स कहाँ होते हैं? ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस परकिंजे सेल्स आर इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता है। श्वान सेल्स, पता है आपको, माइलिनेटेड शीथ है ना, श्वान सेल्स माइलिन जनरेट करता है, तो ये कहाँ है? न्यूरॉन में, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं है। फिर न्यूरोग्लियल सेल्स, ग्लियल या न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? सीएनएस एंड नॉन न्यूरोनल सेल्स में। नॉन न्यूरोनल सेल्स इन सीएनएस एंड पीएनएस, तो ये भी नहीं है। बचे क्या है? अमेक्राइन सेल्स। तो अमेक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
Respiration and photosynthesis are central to this process. Nitrogen cycle, phosphorus cycle, carbon cycle, sulfur cycle. आपको पता है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस सेम रिएक्शन के ही इरिवर्सिबल पार्ट्स हैं, है ना. तो अगर आप C6H12O6 plus O2 give rise to CO2 plus H2O लिखते हो, दिस इज द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन. और अगर इसका उल्टा लिख देते हो तो बन जाएगा रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे क्या आपको कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं. फॉस्फोरस दिख रहा है? नहीं. कार्बन दिख रहा है? यस. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बन साइकिल. ठीक है, तो द आंसर विल बी सी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बट द टाइम वॉज ड्यू टू कि हम लोग, मैं आपको आंसर दूसरी चीज़ों का भी बता रही थी, है ना, कि वो क्या कैसे आपका होगा. तो इसीलिए वो क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये है तो क्यों है, ये पता होना ज़रूरी है, जस्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. ठीक है ना. तो इसीलिए दिस वॉज नेसेसरी, इसलिए हमें इतना टाइम लगा फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. बट अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो विद इन 25 मिनट्स, दैट मीन्स कोई नहीं रोक सकता आपको नीट क्लियर करने से. ठीक है ना. एंड इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 40 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, मतलब भाई क्लियर है इस बार, तो मिठाई का डब्बा तैयार रखो. बट अगर 35 अबव आ रहे तो भी दैट्स गुड, बट यू नीड प्रैक्टिस. ठीक है ना. So that's all for today. In the next session, we'll be discussing some more questions in Neetathon part 2. So that's all for today. Thank you. If you have any doubts, please leave in the comment section. I'll answer them. Right? So, bye-bye.